I think I'll just talk in brief. At least we are the winners over here for MTB category and hybrid category. Okay. And the event organizers are not bothered. And हम लोगों को ना हमारा टाइमिंग पता है, किस टाइमिंग में क्रॉस किया है, या ना उन्होंने बताया है कि भाई कुछ नोट डाउन किया है. टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट. प्राइज मनी, प्राइज वो सब छोड़ दो. एटलीस्ट टाइमिंग एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग. आप लोगों ने इस चीज के लिए, इस दिन के लिए एफर्ट किए होंगे, तैयारी की होगी, वो सब वो वेस्ट मान रहे हैं आप? एफर्ट भी है. सी दे आर चार्जिंग 1000 प्लस. दे आर नॉट गिविंग टाइमिंग चिप. देन दे से दे विल refund it. Now they are not even telling us what time everyone finished. We have already spent like 1 hour in the morning just waiting for the race to start. It was supposed to start at 6:30. इनसे पहले start नहीं हुआ. Absolutely disorganized. और winners को कोई कुछ बोल ही रहा है. We are just getting this participation certificate. That's it. और yes, upgrade जैसे पूछा कुछ 800 something. If someone would actually, and we are not given the medal as well. Thank you so much. Thank you. Speak in English. Are you gonna beat John? Very hard work to beat him because it's probably to do the U-turn for me, and I saw him and he looks very sporty, but and I don't know the track by the way now, sir, but I can follow his team, I think. Sir, what do you think about mismanagement of event organizers? See, I'm an organizer by myself in Germany, and I know all these problems, and sometimes these things can happen. So they tried their best, but nothing can be perfect. Do you think John Abraham is late and John Abraham will not come even at this time? I think he will come, and I think he will. But have a hard race. he's too late. He's too late, but he will come. I think. Do you find it appropriate? Yeah. I think he will be 30 seconds to go. Yeah, also happy to do this race against me, and give the countdown. And Once again, the 10 laps. 10 laps. This is the 6-kilometer lap. 10 laps. See, I'm also an organizer at my home, and I know all these problems. And you can plan if you want. If some people, like coming like a car inside, you have this problem, and that can happen. And but I think Dr. Khan and his staff tried all the best. So I'm sorry about the kids because they were very engaged, and I like it. It was not because of John. Sir, what do you think about parents are angry with the organizer? And John is too late. What are you telling about this thing? I can understand the parents, but I also know it from the side of the organization, and it's very hard work they do here. And if just one car is coming on the track, they have no chance. What should they do? Carry away the car? So just one fault. हम लोग आगे नहीं आ रहे, उनको थोड़ा पीछे Wait, you settle down the media first. Settle down the media first. आप आ जाइए, आप लोग चलिए. You're not going to move now. Please, अरे हम लोग नहीं जा रहे भाई. अरे मैडम आप ले रही हो. मुंबई बाद में रखो, फोटो करने दो. सेटल में तुमको पोस्ट वगैरह
बाईट वगैरह हो रहा हाँ या हम लोग डन डन थैंक यू चलो 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 सर प्लीज सर अरे यू कम इन द फ्रंट ना यार, कम इन द फ्रंट. बाहर का देखो, बाहर का देखो. गाड़ी 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 तक. सर यार राइट में जॉन भाई, जॉन जॉन सर, जॉन भाई, जॉन भाई सामने जॉन सर राइट में जॉन भाई यहाँ पे. John, one more, yes, stage. जॉन जस्ट लुक एट योर प्लीज Cycle, cycle, cycle. चल भाई यार. साइकिल है ना सर साइकिल है सर वन विथ साइड. John, sir, John, sir, John, sir. साइड वाला पीछे वाला John, sir, John, sir. हेलो मैडम John, yes, stage. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रंट ओके. बाय जॉन चलो अभी इसमें किसकी जिम्मेदारी है कि मतलब कि जो मिसमैनेजमेंट इसमें किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है कि मतलब इस तरह की लापरवाही हुई है? देखिए, दो चीज़ें हुई हैं. अब एक ये कि ट्रैफिक पूरी तरीके से क्लैंप नहीं की गई, और दूसरी ये कि साइकिलें यहाँ से भगदड़ में उठा ली गई. तो मैं ये कहूँगा कि जितने रजिस्ट्रेशन आए थे 1,500-2 हज़ार ज़्यादा लोग और आ गए, और साइकिलों को बिना डिक्लेरेशन दिए, बिना प्रोसेस को फॉलो किए, बैरिकेड को तोड़ के साइकिलें उठा ली गई. आज तकरीबन 500 साइकिलें मिसिंग हैं जो वापस नहीं आई. जिन लोगों ने रजिस्टर किया था साइकिलों के लिए, उनकी साइकिलें उनको मिली नहीं, इसलिए वो हताश गए. सर इस भगदड़ में काफ़ी पेरेंट्स नाराज़ थे कि मतलब उनका कहना था कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन की मिसमैनेजमेंट की गलती है. तो आप इसको इस बात को ऑर्गेनाइजेशन ने सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया. इवन हमने देखा भी कि कहीं ना कहीं रोडें खाली होनी चाहिए थी, बट वो खाली नहीं थी. किड्स के लिए कुछ भी हो सकता था. पेरेंट्स शायद इसलिए ज़्यादा एंग्री थे. तो इसमें किसकी गलती है, ऑर्गेनाइजेशन की या देखिए, ऑर्गेनाइज़र अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है वो ऑर्गेनाइज़र करता है, पर बिना सिविक बॉडी की सपोर्ट के वो नहीं कर सकता. हमें सारी परमिशन प्राप्त थी, हर परमिशन हमने ली थी. रोड को क्यों इस तरीके से छोड़ा गया, और डिक्लेयर होने के बाद पहले ये कहा गया कि एक दूसरी रेस मैराथन दौड़ हो रही है, उस दौड़ को आप ख़त्म होने दें, उसके बाद शुरू करें. तो पहली देर वहाँ शुरू हुई. उसी दौरान साइकिलों की चोरी शुरू हो गई पीछे. उसके बाद जब हम शुरू करने के लिए आए, जब हमें कहा गया कि रोड अब बंद है, तो हमारे चालू करने के बाद बीच में रोड को चालू कर दिया गया. अब ये किसकी अनुमति से किया गया ये मैं नहीं जानता, पर हाँ, ट्रैफिक पुलिस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अगर कोई ट्रैफिक पुलिस बैरिकेड खोल दे और किसी गाड़ी को अंदर आने दे. सर आपको जो कि ये गलती हुई सर है. आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें ट्रैफिक पुलिस कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिन्होंने मतलब गलती की है? बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि हमने ना ही MSRDC की, बल्कि हमने हर पुलिस स्टेशन, हर लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन, हर ट्रैफिक पुलिस चौकी, हर एक PSI के नोटिफाई किया है. हर एक के रिमार्क्स हैं, अगर फाइल्स चेक की जाएँ, हर एक ने अप्रूवल दिया है और NOC दिया है कि ये रेस को इस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा. सर जॉन इब्राहिम आने वाले थे 6 बजे के करीब में, लेकिन वो 2.5 घंटे लेट आए, 8:30 के करीब में पहुँचे. तो और उसके बाद आने के बाद फिर उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, स्टेज पे नहीं गए. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जॉन दुबई से आ रहे थे और जॉन शूट कर रहे हैं दुबई में. वो खाली इस इवेंट के लिए यहाँ आए थे. वो आए, यहाँ पे आने के बाद उनको ये जो सवेरे से चीज़ें चल रही थी उसके बारे में उनको पता चला, तो वो
थोड़ा रुके कि उससे वो यहाँ पे सब चीज़ें सेटल हों, उसके बाद आए। वो आने के बाद उनकी एक स्पर्धा थी स्टेफन बॉर्मन के साथ, जो एक पैरासाइक्लिस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए थी। पर जिस तरीके का माहौल था उनको नहीं ठीक लगा कि ये एक मंच है जिसके ऊपर वो ये चीज़ करें, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई ठीक है, हम आते दिनों में जो दूसरी और तीसरे लेग होंगे उसमें हम लोगों को उसका दर्शन देंगे, उसका एग्जीबिशन करेंगे। जब दूसरी और तीसरी टाइम ये होगा तो कैसे लोग अपने बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे? बिकॉज फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ है तो किस तरीके से आप लोगों को ये बात विश्वास दिलाएंगे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है या बिल्कुल गलत हुआ है। मैं ये कहूँगा कि जो 2 रेसें बाकी हैं, एक रेस तो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है जो जयपुर में है, जो लॉक्ड आउट है, जो आम जनता के लिए नहीं है, और दूसरी जो दिल्ली में है वो जो आम जनता के लिए है, वो एक फार्मूला 1 ट्रैक के अंदर है और वो लॉकआउट में की जाएगी। तो मैं आगे के लिए यही कहूँगा कि हम अपने लिए एक सबक लेते हैं कि हम एक ऐसा सिक्योर ट्रैक लें जिसमें कि लोगों को भले 10 चक्कर काटने पड़े, पर वो बिल्कुल प्रूफ रहे कि किसी की भी हस्तक्षेप और किसी का भी उसमें गाड़ियों का इंटरफेरेंस से कोई चीज़ ना रहे आते सालों। हाँ, लेकिन आपके जो वॉलंटियर्स थे वो हमने देखा जिस तरीके से वॉलंटियर्स को अलर्ट रहना चाहिए सिचुएशन पे, जिस तरीके से सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन आपके एक भी वॉलंटियर वहाँ पे नहीं था, तो इसमें किसकी मिस्टेक है? बिकॉज योर वॉलंटियर ऑल्सो सेड कि हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारे जो जिन्होंने इवेंट वगैरह के जो हेड हैं, उन्होंने हमें ढंग से नहीं बताया कि किस तरीके से कहाँ पे खड़े होना है, किस तरीके से काम जी देखिए, हर इंसान अपना एक वर्जन दे सकता है और अपना हक रखता है एक वर्जन देने का। एक इंसान की तकलीफ़ सबकी तकलीफ़ है, पर मैं नहीं कहूँगा कि ब्रीफिंग नहीं दी गई थी या ब्रीफिंग अच्छे से नहीं दी गई थी, पर होता यूँ है कि जब भगदड़ मच जाती है और जब कोई चीज़ अनिवार्य होती है कि जो प्लान्ड हो उस तरीके से नहीं होती, तब जाहिर सी तौर पे एक छोटा बच्चा है जो वॉलंटियर है, कोई वॉलंटियर बहुत समझदार एक बहुत सीनियर आदमी नहीं है कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है। मैंने खुद ने पीछे जाके सिचुएशन को देखा और मैं खुद, अगर आपने देखा होगा, मैं खुद पूरे टाइम वहाँ था जब तक आखिरी आदमी जिसको साइकिल नहीं मिल गई। मेरे बस में जितना था मैंने वो पूरा किया। जिन लोगों को जो तकलीफ़ थी उनकी तकलीफ़ों को जवाब दिया, उन लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस मेरे हाथ में अनफॉर्चुनेटली नहीं थी और मैं इसकी कड़ी निंदा करूँगा। सर बच्चे को I don't think that you are wrong. I think some of the volunteers really cracked, and some of the volunteers should not have handled the situation in the way they handled. But I think I'm taking stock of the situation and moving forward and going forward, we will make sure that everything is in order. Only then we will go forward. सर एक लास्ट सवाल, जब बच्चे को चोट लगती है तो माँ बाप को गुस्सा आता है, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का गुस्सा कहाँ तक जाए? मेरा खुद का बच्चा है, यहीं भाग रहा है, और अगर उसको चोट लगेगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। अगर चोट तो बहुत दूर की बात है, अगर एक बच्चे को एक मेडल नहीं मिलता है तो मेरा बच्चा रोते हुए घर जाता है, क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे वो मेडल के लिए आया है, उसके लिए वो मेडल ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान ये कह सकता है कि कोई भी बच्चा हताश होकर जाए तो वो सही बात है। ये प्रॉपर्टी, इसको मैंने बहुत दिल से, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र के रूप में मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने ये चीज़, ये प्रॉपर्टी बनाई, इसको भी अपने बच्चे की तरह ही बनाई। और मुझे आज सबसे बड़ी तकलीफ वो बात की हो रही है कि लोगों को यहाँ से तकलीफ़ ही से परेशान होकर जाना पड़ा, बोले किसकी भी वजह से हो। तो मैं आइंदा के लिए यही कहूँगा कि मैं इसमें तभी आगे बढ़ूँगा जबकि मैं इन सब चीज़ों को सील कर दूँ, इन सब चीज़ों को पुख्ता कर दूँ, तो मैं अब अगली बार यहाँ पे रेस कंडक्ट करूँगा। सर एक बार विश्वास टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ना वापस बहुत मुश्किल पड़ता है, तो आपको इसमें क्या कहना है? देखिए, विश्वास टूटने से हिम्मत हार लेने वाले की भी कोई सराहना नहीं करती, तो मैं हिम्मत हारने वालों में से और छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, और मैं फिर वापस आऊँगा और फिर सबका विश्वास जीतूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया वो दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हो? पूछा। श्रद्धा को पता चला कि उनका ड्राइवर उन्हें छोड़कर जा चुका है। श्रद्धा के ड्राइवर को शायद कोई गलतफहमी हो गई थी।